تمہیں پسند نہیں تھی اور اب تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو اور اب وہ تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اس نے مجھے اپنا آخری ڈیسیژن بتا دیا تھا۔ تبھی شجا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ بھاگ کے سیرت کے روم میں چلا جاتا ہے اور وہ تب سیرت بہت ہی زیادہ چیخ و پکار کرتی ہے لیکن وہ یہاں پہ سیرت کو پکڑ لے گا اور اس کی گردن دبائے گا اور اسے کہے گا کہ تم میرا رشتہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہو تو آج بس میں تمہیں مار ہی ڈالوں گا۔ تبھی وہ اس کی گردن زور سے دبوچ لے گا اور اس بیچاری کے گردن پہ بہت زیادہ زخموں کے نشان بن جائیں گے اور تب وہ بہت زیادہ چیخ و پکار کرنے لگ جاتی ہے۔ تب حیدر اس کی آواز سن لیتا ہے اور باہر سے بہت زور زور سے دوبارہ دروازہ بجانے لگ جاتا ہے۔ تو حیدر زور کے وہ دروازہ توڑ کے جب اندر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سیرت ہوتی ہے وہ نیچے گری پڑی ہوتی ہے۔ تب وہ اس کو ایمرجنسی لے جاتا ہے اور تب ڈاکٹرز اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہ دادا جان کو کال کرے گا اور اس کو بہت زیادہ باتیں سنائے گا اور اسے کہے گا یہ سارا کچھ آپ کی شے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب آپ دیکھے گا کہ شاید آپ اسے معاف کر دیں لیکن میں اسے بالکل بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ اس نے جو میری بہن کا حال کیا ہے اس کے بعد تو معافی کی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ تو یہاں پہ دادا جان اس سے سوال کریں گے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سن کے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے میری بہن کی گردن دبوچی ہے اور اب دیکھیے گا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا اور اس کا میں یہ انجام کروں گا کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے گا۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب شجاع اپنے انجام کو جلد از جلد پہنچ جائے گا؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ جو دادا جان ہوتے ہیں وہ شجاع کو کہتے ہیں کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور سیرت کا پیچھا چھوڑ دو۔ اب تو تمہاری اولاد بھی آ گئی ہے اور تم اپنی فیملی کے ساتھ ہیپی لائف گزارو۔ لیکن اب شجاع کے سر پہ بھوت سوار ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سیرت سے شادی کر کے رہوں گا۔ تب دادا جان اسے کہتے ہیں کہ شروع میں تو وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں تھی اور اب تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو اور اب وہ تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اس نے مجھے اپنا آخری ڈیسیژن بتا دیا تھا۔ تبھی شجاع کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ بھاگ کے سیرت کے روم میں چلا جاتا ہے اور وہ تب سیرت بہت ہی زیادہ چیخ و پکار کرتی ہے لیکن وہ یہاں پہ سیرت کو پکڑ لے گا اور اس کی گردن دبائے گا اور اسے کہے گا کہ تم میرا رشتہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہو تو آج بس میں تمہیں مار ہی ڈالوں گا۔ تبھی وہ اس کی گردن زور سے دبوچ لے گا اور اس بیچاری کے گردن پہ بہت زیادہ زخموں کے نشان بن جائیں گے اور تب وہ بہت زیادہ چیخ و پکار کرنے لگ جاتی ہے۔ تب حیدر اس کی آواز سن لیتا ہے اور باہر سے بہت زور زور سے دوبارہ دروازہ بجانے لگ جاتا ہے۔ تو حیدر زور کے وہ دروازہ توڑ کے جب اندر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سیرت ہوتی ہے وہ نیچے گری پڑی ہوتی ہے۔ تب وہ اس کو ایمرجنسی لے جاتا ہے اور تب ڈاکٹرز اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہ دادا جان کو کال کرے گا اور اس کو بہت زیادہ باتیں سنائے گا اور اسے کہے گا یہ سارا کچھ آپ کی شے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب آپ دیکھے گا کہ شاید میں آپ اسے معاف کر دیں لیکن میں اسے بالکل بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ اس نے جو میری بہن کا حال کیا ہے اس کے بعد تو معافی کی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ تو یہاں پہ دادا جان اس سے سوال کریں گے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سن کے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے میری بہن کی گردن دبوچی ہے اور اب دیکھیے گا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا اور اس کا میں یہ انجام کروں گا کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے گا۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب شجاع اپنے انجام کو جلد از جلد پہنچ جائے گا؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ جو دادا جان ہوتے ہیں وہ شجاع کو کہتے ہیں کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور سیرت کا پیچھا چھوڑ دو۔ اب تو تمہاری اولاد بھی آ گئی ہے اور تم اپنی فیملی کے ساتھ ہیپی لائف گزارو۔ لیکن اب شجاع کے سر پہ بھوت سوار ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سیرت سے شادی کر کے رہوں گا۔ تب دادا جان اسے کہتے ہیں کہ شروع میں تو وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں تھی اور اب تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو اور اب وہ تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اس نے مجھے اپنا آخری ڈیسیژن بتا دیا تھا۔ تبھی شجاع کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ بھاگ کے سیرت کے روم میں چلا جاتا ہے اور وہ تب سیرت بہت ہی زیادہ چیخ و پکار کرتی ہے لیکن وہ یہاں پہ سیرت کو پکڑ لے گا اور اس کی گردن دبائے گا اور اسے کہے گا کہ تم میرا رشتہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہو تو آج بس میں تمہیں مار ہی ڈالوں گا۔ تبھی وہ اس کی گردن زور سے دبوچ لے گا اور اس بیچاری کے گردن پہ بہت زیادہ زخموں کے نشان بن جائیں گے اور تب وہ بہت زیادہ چیخ و پکار کرنے لگ جاتی ہے۔ تب حیدر اس کی آواز سن لیتا ہے اور باہر سے بہت زور زور سے دوبارہ دروازہ بجانے لگ جاتا ہے۔ تو حیدر زور کے وہ دروازہ توڑ کے جب اندر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ
सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है, तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है? तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएँगे और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो-पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है? तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएँगे और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो-पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है? तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द
पहुँच जाएगा। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएंगे और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है। तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएंगे और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है। तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को
पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो, तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएँगे और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो-पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद मैं आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है। तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो, तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएँगे और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो-पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद मैं आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है। तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो, तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएँगे और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो-पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद मैं
आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है? तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा, और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो, और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है, और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएँगे, और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो-पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है? तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा, और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो, और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है, और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएँगे, और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो-पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है? तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा, और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब
शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएंगे और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है। तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएंगे और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है। तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के
गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएँगे और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो-पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है। तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो-पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएँगे और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो-पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है। अब आप देखिएगा कि शायद आप उसे माफ़ कर दें, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने जो मेरी बहन का हाल किया है उसके बाद तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बनती। तो यहाँ पे दादा जान उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बताओ कि उसने क्या किया है। तो वो कहता है कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसने मेरी बहन की गर्दन दबोची है और अब देखिएगा मैं उसके साथ क्या करूँगा और उसका मैं ये अंजाम करूँगा कि वो कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब शुजा अपने अंजाम को जल्द से जल्द पहुँच जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जो दादा जान होते हैं वो शुजा को कहते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और सीरत का पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारी औलाद भी आ गई है और तुम अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ गुजारो। लेकिन अब शुजा के सर पे भूत सवार हो गया है और वो कहता है कि मैं सीरत से शादी करके रहूँगा। तब दादा जान उसे कहते हैं कि शुरू में तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं थी और अब तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो और अब वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसने मुझे अपना आखिरी डिसीजन बता दिया था। तभी शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भाग के सीरत के रूम में चला जाता है और वो तब सीरत बहुत ही ज़्यादा चीखो-पुकार करती है वो, लेकिन वो यहाँ पे सीरत को पकड़ लेगा और उसकी गर्दन दबाएगा और उसे कहेगा कि तुम मेरा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती हो तो आज बस मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। तभी वो उसकी गर्दन ज़ोर से दबोच लेगा और उस बेचारी के गर्दन पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान बन जाएँगे और तब वो बहुत ज़्यादा चीखो-पुकार करने लग जाती है। तब हैदर उसकी आवाज़ सुन लेता है और बाहर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से दोबारा दरवाज़ा बजाने लग जाता है। तो हैदर ज़ोर के वो दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर आता है तो वो देखता है कि सीरत होती है वो नीचे गिरी पड़ी होती है। तब वो उसको इमरजेंसी ले जाता है और तब डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वो दादा जॉन को कॉल करेगा और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और उसे कहेगा ये सारा कुछ आपकी शय की वजह से हुआ है।
اب آپ دیکھیے گا کہ شاید آپ اسے معاف کر دیں، لیکن میں اسے بالکل بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے جو میری بہن کا حال کیا ہے اس کے بعد تو معافی کی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ تو یہاں پہ دادا جان اس سے سوال کریں گے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو سن کے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، اس نے میری بہن کی گردن دبوچی ہے، اور اب دیکھیے گا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، اور اس کا میں یہ انجام کروں گا کہ وہ کہیں